નમસ્કાર, નિર્માણ ન્યૂઝની વિશેષ રજૂઆત ઝીરો અવર કાર્યક્રમ સાથે હું છું યજ્ઞ ત્રિવેદી. દર્શક મિત્રો, આજે ઝીરો અવર કાર્યક્રમમાં વાત કરવાની છે જ્ઞાનવ્યાપી મસ્જિદને લઈને. જ્ઞાનવ્યાપી મસ્જિદ કે પછી જ્ઞાનવ્યાપી મંદિર, તેને લઈને સવાલ ઘણા બધા યથાવત જોવા મળી રહ્યા છે. ઘણી બધી ચર્ચા વિચારણાઓ જોઈ, ઘણા જે આક્ષેપ પ્રત્યાક્ષેપ જોયા, અને ત્યારબાદ એક જ સવાલ યથાવત જોવા મળી રહ્યો છે કે આ જ્ઞાનવ્યાપી મસ્જિદમાં હવે શિવલિંગ મળ્યું ત્યારબાદ શું? એક બાજુ જે રીતે કોર્ટનો જિલ્લા પ્રશાસનને એક આદેશમાં ધરાવતો સામે આવ્યો હતો, અને સાથે જે રીતે એ જગ્યાને સીલ કરીને લોકોને ત્યાં જવા ઉપર પ્રતિબંધ મૂકી દેવામાં આવ્યો છે, અને સાથે જે રીતે સર્વે કરવામાં આવ્યો હતો, 3 દિવસ જેટલો સર્વે ધરાવતો આ ધરવામાં આવ્યો હતો. અને આ 3 દિવસના સર્વેમાં જોવા જઈએ તો પહેલા દિવસે 4 જેટલા ભોંયરા ખોલવામાં આવ્યા હતા, બીજા દિવસે ગુંબજ અને નમાઝ સ્થળ અને સાથે વધુ સ્થળનો જે સર્વે કરવામાં આવ્યો હતો. તો બીજી બાજુ ત્રીજી વાત કરવામાં આવે તો ત્રીજા દિવસે શિવલિંગ મળ્યાનો અત્યારે હાલ ઘટસ્ફોટમાં સામે આવ્યો છે. હવે આ તમામ પરિસ્થિતિમાં એક જ સવાલ યથાવત જોવા મળી રહ્યો છે કે આ જે પરિસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે સર્વે માટે, જે ત્રીજા દિવસે અત્યારે હાલ તો જે તમામ પ્રકારની ચર્ચા વિચારણાઓ જોઈ હતી, જે સર્વે સામે આવ્યો હતો, અને તેમાં હવે કેવા પ્રકારની પરિસ્થિતિ સર્જાશે તેને લઈને તો સવાલ યથાવત જોવા મળી રહ્યો છે. અને સાથે હવે જ્યારે મંગળવારે કોર્ટમાં જે હવે રિપોર્ટ સોંપવામાં આવશે, એક બાજુ તમામ પક્ષકાર અત્યારે હાલ તો એમ જ કહી રહ્યા છે કે ના, જે અત્યારે હાલ તો અદાલતની જે પણ કાર્યવાહી છે, નામદાર કોર્ટ દ્વારા જે પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે તેને અત્યારે હાલ તો માન્ય રાખવામાં આવશે. તો આ તમામ મુદ્દાઓને લઈને આપણે ચર્ચા વિચારણા કરીશું. આ તમામ મુદ્દાઓને લઈને ચર્ચા વિચારણા કરવા માટે અમારી સાથે જોડી ગયા છે ડૉક્ટર રમેશ વર્મા, કે જેઓ વરિષ્ઠ પત્રકાર છે, સાથે વિશાલભાઈ ત્રિવેદી, કે જેઓ પ્રદેશ પ્રવક્તા છે હિન્દુ યુવા વાહિની ગુજરાતના. જે આ બંનેનું સૌથી પહેલાં તો સ્વાગત છે. અને સૌથી पहला प्रश्न है रमेश जी, सबसे पहला मैं सवाल आपको करना चाहूँगा कि जिस तरीके से ज्ञानव्यापी मस्जिद और मंदिर की बात अभी तो हो रही है, बहुत आक्षेप और प्रति आक्षेप भी हमें देखने मिले. मैं शिवलिंग के बारे में मैं बाद में मैं सवाल करूँगा, मगर सबसे पहला मेरा सवाल है कि बहुत चर्चा हुई, ये पूरा का पूरा मसला और मुद्दा है क्या ज्ञानव्यापी का? रमेश जी. आपकी आवाज जरा नहीं आई, फिर से जरा बोलिए, क्या सवाल है आपका? ये ज्ञानव्यापी का जो अभी मुद्दा है, मसला है, वो क्या है? सबसे पहला मेरा सवाल ये है आपको. देखिए, ज्ञानव्यापी जो मस्जिद है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये मसला 350 साल पुराना है, और ये माना जाता है कि यहाँ पर बाबा विश्वेश्वरनाथ का मंदिर था, जिसको तोड़ करके मस्जिद बनाया गया, और जो बाबा विश्वेश्वरनाथ की शिवलिंग थी वो उस कुएं में फेंक दी गई थी. आज वही शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है कोर्ट के एक सर्वे में. अब उसी को लेकर के एक नया विवाद बिछड़ गया है, नया मोड़ भी आ गया है. कोर्ट ने जैसे ही सूचना मिली कि शिवलिंग मिली है, तत्काल उसको सील करा दिया, वहां पर सीआरपीएफ का पहरा लगा दिया, और ये शिवलिंग बजू खाना में मिली थी. उस बजू खाना में लोगों के जाने पर रोक लगा दी है, बजू वहां कोई कर नहीं सकता है. इस तरीके की कार्रवाई आज की गई है, और जो शिवलिंग मिलने से जो हिंदू पक्ष है वो काफी उत्साहित है. हर हर महादेव के नारे लगाए जा रहे हैं, लोग खुशी व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो हम चाहते थे वो हमको मिल गया है. अब कल जो है रिपोर्ट कमिश्नर जो है तीनों पेश करेंगे कोर्ट में अपनी सर्वे रिपोर्ट. अब देखना है कि उस सर्वे रिपोर्ट पर क्या कोर्ट का आदेश होता है. कल सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है. अब ये भी देखना है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है. બિલકુલ, એક બાજુ જે રીતે ક્યાંક ટીમ 3 દિવસ સુધી જે સર્વે તો કરતી હતી ને હવે કેવા પ્રકારનું પરિણામ. વિશાલભાઈ, આપને પ્રશ્ન કે એક બાજુ જે રીતે જ્ઞાનવ્યાપી મસ્જિદમાં હવે જે આ શિવલિંગ અત્યારે તો જોવા મળ્યું છે, કઈ રીતે આપ જોઈ રહ્યા છો તેને? શિવલિંગ બામિયાનથી લઈ, બામિયાન પ્રદેશ છે અફઘાનિસ્તાનમાં, બામિયાનથી લઈ અને બાલી સુધી ઇન્ડોનેશિયા છે, મલેશિયા છે, બાંગ્લાદેશ છે, બર્મા છે, અફઘાનિસ્તાન છે, પાકિસ્તાન છે, જેટલા પણ મંદિરો ધ્વસ્ત કરવામાં આવેલા છે, તમે જેટલી જૂની મસ્જિદો હશે ને એનું જો ખનન કરવામાં આવે તો બામિયાનથી બર્મા સુધી દરેક મસ્જિદમાંથી કોઈને કોઈ મંદિર, કોઈને કોઈ મૂર્તિ, કોઈને કોઈ શિવલિંગ નીકળશે. એટલે આ ઇતિહાસનું દર્પણ છે. આપણી ઉપર હિન્દુ ઉપર જે જુલ્મ કરવામાં આવ્યા હતા,
એનું આ દર્પણ છે જે આજે દેખાઈ રહ્યું છે. દર્પણ છે અને અત્યારે તે જોવા મળી રહ્યું છે. સહલ કુરેશી જેઓ મુસ્લિમ અગ્રણી છે આપણી સાથે જોડાયા છે. સહલભાઈ, આપનું પણ સ્વાગત છે. સહલભાઈ, એક બાજુ જે રીતે સર્વે 3 દિવસ થયો અને જ્યાં ત્રીજા દિવસના જે સર્વેમાં અત્યારે તો શિવલિંગ મળી આવ્યું છે તેની ઉપર પણ અત્યારે તો તપાસ જોવા મળી રહી છે. કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો આપ તેને? देखिए, बाबरी मस्जिद में 1948 में क्या हुआ, चोरी छुपे चोर बंद कर रात के अंधेरे में मूर्तियां रख दी गई थी और उसके बाद में बता दिया गया. और अब जो ज्ञानवापी का मामला है, अब जो लोग कहते हैं कि बड़े खुश हैं, ठीक है, आपका धर्म है, आप उसका करिए, हमें उससे कोई वो नहीं, आपकी आस्था आपके साथ है. लेकिन जो आज तक ये कहते थे कि इस देश का मुसलमान कानून को नहीं मानता, संविधान को नहीं मानता, ये कहने वाले लोग खुद नंगे हो गए हैं जनता के सामने. वो कैसे? वो ऐसे कि इस देश का कानून 1991 में पार्लियामेंट ने कानून बनाया और उस कानून में क्या कहा गया, क्या उस कानून को ये लोग नहीं मानते? सहल भाई, हमने गंगा जमुना बोलने दीजिए ना, आपने बोला मैं चुप रहा ना, बोलने दीजिए, आप पहले सुन लीजिए पहले आप. दूसरा, जब ये कानून ये बनाया गया और ये बोल दिया गया कि भाई आजादी से पहले जो मस्जिद थे, जो मंदिर थे, वो वही रहेंगे बाद में, उसके साथ में छेड़छाड़ नहीं की जाएगी. और उस वक्त राम मंदिर बाबरी मस्जिद को इस केस से, इस कानून से अलग रखा गया था कि ठीक है, चलिए इस पे पहले से ये अलग मामला है, इसको अलग रखते हैं. उसके बावजूद भी ये मामला उठाया गया. दूसरा, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है, इलाहाबाद हाई कोर्ट पहले ही इस पर स्टे लगा चुका था, उसके बावजूद इसमें नाम बदल कर अर्जी दी गई कोर्ट के अंदर. दूसरी एक और बात, जब ये सर्वे चल रहा था, सर्वे की शर्त ये थी कि सर्वे में जो भी चीजें बाहर आएगी वो बाहर कहीं नहीं जाएगी. उसके बावजूद एक पक्ष ने आकर बाहर आकर बोल दिया कि ये मिल गया, वो मिल गया. क्या आपको इंतजार नहीं था कोर्ट की सुनवाई का? और दूसरा, डीएम साहब तो उससे भी ज्यादा महान निकले कि उन्होंने बिल्कुल इंतजार नहीं किया कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, कहाँ सुनवाई होगी, कुछ नहीं. उन्होंने सीधे ऑर्डर कर दिया उस जगहों को सील कर दिया जाए. तो बिल्कुल शक तो हमें होगा, हमें आज भी शक है. सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमने माना, लेकिन बिल्कुल हमें उस फैसले का आज भी दुख है. और दूसरा, सुनिए आप पहले, जब पहले से मैं बार बार बात कहूंगा कि 1991 में जब ये साफ कर दिया गया था, वो इसीलिए साफ कहा गया था कि इस देश के अंदर कोई धर्म के नाम पर अपनी खेती न कर सके. इस देश के अंदर कोई मेरे भोले भाले हिंदू भाइयों को धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर उसका भी जवाब दूंगा. लेकिन चूंकि देश में बेरोजगारी है, देश में 1991 वाली बात का भी मैं जवाब दूंगा. रुपए का सिलेंडर मिलता था, वो हिंदू राष्ट्र में 1000 रुपए का दिया जा रहा है. ये सर्वे हो रहा था 3 दिन तक. साल भाई दिया गया है. साल भाई एक मिनट साल भाई 3 दिन तक सर्वे हुआ. 3 दिन का सर्वे हुआ. तीसरे दिन पे यहाँ पे ये शिवलिंग अभी तो सामने आया. तो आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं अंदर जाके कोई रख के आया था? वो बाबरी मस्जिद के टाइम पर भी तो यही करा था ना, 1948 में शिवलिंग की बात करो ना, मूर्ति रख दी गई थी और सर्वे में बता दिया गया कि देखिए ये निकला है. और यहाँ पर जब कोर्ट ने जिन्होंने सर्वे किया है, सर जी सर्वे पर पहले से स्टे लगा चुका था, तो अभी सर्वे की क्या जरूरत थी उसके अंदर? सर जी ऐसी बात, एक मिनट सर जी सर्वे नहीं होना चाहिए था. 1951 में बनाया, तो क्या ये लोग उस कानून को नहीं मानते? सर जी कानून सब लोग मानते हैं, सब लोग संविधान को नहीं मानते हैं. नहीं सर जी, मेरा एक सवाल आपको भी है कि जिस तरीके से अगर हम परिसर की बात करें, वहां पे एक कुआं था और उसके अंदर से पानी निकाला, तो वहां पे ये शिवलिंग मिला है. तो आपका वो कहना चाहोगे कि नहीं वो लोग अंदर जाके डाल के आए? फिर कुछ भी हो सकता है ना. जब बाबरी मस्जिद टाइम पर ऐसा कर सकते हैं तो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं. और मैं ये कह रहा हूं कि जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया था, तो ये मामले के आने की जरूरत कहाँ थी? आप जो दीवार है गुंबद के वो उसने लगाई, खुश हो जाइए बस. सर जी ओके मैं आपको हालत देखिए, धर्म के नाम पर चलकर श्रीलंका की क्या हालत हुई है. ओके साल भाई, आगे बढ़ रहा है. ओके साल भाई ओके जी विशाल भाई जी. સાહેબનું એવું કહેવું છે કે બાબરી મસ્જિદમાં મૂર્તિઓ મૂકી આવ્યા હતા, પછી અત્યારે શિવલિંગ પણ મૂકી આવ્યા છે, એવું એમનું માનવું છે. તો પેલી ગુંબદની નીચે જે પશ્ચિમ દિવાલ છે
કે જેમાં હિન્દુ દેવી દેવતાઓના ચિત્રણો અને મંદિરના સ્તંભો ને મળ્યું છે, એ કેવી રીતે આવ્યું? એ પહેલા ત્યાં મસ્જિદની દિવાલો હતી, એને કોઈએ હટાવીને ત્યાં મંદિરની દિવાલો ફિટ કરી દીધી, એવું પણ એમનું માનવું હશે. 1951 ના મુદ્દાનું काम करिए, फिर आपको आजादी के पहले की बात है तो सारी बातें आजादी के साल भाई पहले साल वाली भाई बात है। ले साल भाई एक मिनट, आजादी के उनको पहले की उनको बात खत्म है। करने मेरी दीजिए बात सारी बातें आजादी के पहले प्लीज की बात प्लीज है। साल भाई प्लीज मीठा मीठा प्लीज साल भाई मुझे आपके टर्न में रिप्लाई कर लेना भाई, मेरी बात खत्म होने दीजिए। 1991 ની વાત કરી સાહેબે। 1991 માં આપણને ખબર છે કે કઈ સરકાર હતી, અને સરકારે ભૂતકાળમાં આઝાદી શરૂઆતથી લઈ અને હિન્દુઓને ડારવા માટે કેવા કેવા કાયદાઓ બનાવ્યા છે। હિન્દુ મેરેજ એક્ટ, કોમ્યુનલ રાઇટ્સ બિલ પાસ કરવાની તૈયારી હતી, એટલે હિન્દુઓને દબાવવા માટે, હિન્દુઓનું વસ્તી નિયંત્રણ માત્ર ને માત્ર હિન્દુઓ માટે રહે એ પ્રમાણે જબરજસ્તી નસબંધીના કાયદાઓ કરાવેલા, આ દેશ ઉપર કટોકટી લાદેલી, એટલે એ સરકારે હિન્દુઓને દબાવવા માટે કેવા કેવા કાયદા કરેલા એ આપણને ખબર છે। એટલે એ જ સરકારે હિન્દુઓનું આ જાહેર ન થાય, કેમ અત્યારે જાહેર થયું? શિવલિંગ ક્યાં રાતોરાત આવી ગયું? દિવાલ ક્યાં રાતોરાત ઊભી થઈ ગઈ? નથી થઈ। આ હતી જ, જેને તોડી અને આક્રાંતાઓએ, વિદેશી આક્રાંતાઓએ જેને તોડી અને અમારા મંદિર તોડી અને મસ્જિદ ત્યાં નાખેલું, અને મસ્જિદ ઉપર એક સંપ્રદાય વિશેષ અમારા શિવલિંગનું, દેવનું અપમાન કરતા હતા। સાહેબ 350 વર્ષથી ત્યાં નંદી બેસી અને મહાદેવની પ્રતિષ્ઠા કરતા હતા, અને આજે મહાદેવ ત્યાં પ્રગટ થયા છે। वो विशिष्ट आक्रांता की बात कर रहे हैं आप? आक्रांता है किस विशिष्टता की बात कर रहे हैं? जो हिंदू महिलाओं को आपके औरंगजेब की बात कर रहा हूँ भाई। अब मैं औरंगजेब जी ओके। रमेश जी, मैं आपको एक सवाल करना चाहूँगा कि जिस तरीके से जो मसला अभी देखा है ज्ञान व्यापी का, और यहाँ पे एक और सवाल अभी यही हो रहा है कि शिवलिंग अभी सामने आया। एक मिनट सहल दी एक मिनट एक मिनट सहल दी एक मिनट भारत के जो हिस्से थे ना, पाकिस्तान बांग्लादेश भारत के ही हिस्से थे, भारत में से ही आजाद हुए। वहां पे पॉपुलेशन रेशियो देख लीजिए, हिंदू कितने थे और अभी कितने हैं, ये देख लीजिए। और आपका इतिहास ये रहा है, पूरी दुनिया आपसे त्रस्त है। अच्छा, पूरी दुनिया हमसे त्रस्त था। सुनिए, त्रस्त है। अमेरिका में कौन गया था तलवार लेकर इस्लाम फैलाने के लिए? वहां के लोग आप इतने ही गए थे मुसलमान भाई, बन रहे हैं, आप ही गए होंगे। मुसलमान बन रहे हैं। आप भी एक दिन कलमा पढ़ेंगे, याद रखिएगा। અત્યારે આપણે જે મુદ્દા લઈને વાત કરવાની છે, આપણે એ મુદ્દા લઈને વાત કરીએ। ये सोचकर, ये देखकर मेरा देश का हिंदू युवा खुद इस बात के लिए मजबूर होगा कि भाई आप हिंदू क्यों करते मुसलमानों से? सबको पता है, पूरी दुनिया देख रही है सच को। और आप देख रहे हैं कि उस हिंदू संगठन अपने गिरेबान में एक बार झांक के देखिए, अपने गिरेबान में एक बार झांक के देखिए, पूरी दुनिया आपसे परेशान है, पूरी दुनिया ने आपने फैला रखा है। कोई मुद्दा नहीं है आपके पास। धार्मिक आतंकवाद, धार्मिक आतंकवाद आपने पूरी दुनिया में फैला रखा है। एक मिनट विशाल भाई, सहल भाई, आ रीते डिबेट ना हो प्लीज, आ रीते डिबेट ना हो। मारे અત્યારે જ્ઞાન વ્યાપીના મુદ્દાને લઈને જ અત્યારે ચર્ચા કરવાની છે। અત્યારે ક્યાં ચર્ચા જઈ રહી છે? મારો મુખ્ય મુદ્દો અત્યારે એક જ છે કે જ્યારે આ પ્રકારની જે પરિસ્થિતિ જોવા મળી, અને ત્યારબાદ સહલભાઈ તમે એક જ વસ્તુ કહી રહ્યા છો કે ના અત્યારે અંદર જે શિવલિંગ મૂકી ગયા હતા કે ત્યાં જઈને પછી એમને ના મળે, તમે આ પ્રકારની વાત કરો છો। આટલા 3 દિવસ સુધી સર્વે થયો। એક મિનિટ સહલભાઈ, અનમ્યુટ कीजिए પ્લીઝ, अनम्यूट कीजिए। एक मिनट सहल भाई एक मिनट रमेश जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरीके से अगर हम हिंदू पक्ष की बात करें और मुस्लिम पक्ष की बात करें, उन दोनों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। एक तरफ हिंदू पक्ष ने यही कहा है कि नहीं वहाँ पे मंदिर था इसलिए शिवलिंग मिला है, और दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष भी यही कह रहा है कि नहीं ये सब कुछ वो प्री प्लान था। क्या कहना चाहोगे आप उसके बारे में? देखिए, अभी अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। जो ज्ञान वापी मस्जिद है ये पहले से ही रिकॉर्ड में है, सब कुछ है, लेकिन अब विवाद तो बहुत पहले से था कि मंदिर तोड़कर बनाया गया, मंदिर तोड़ करके बनाया गया है। और यहाँ पर जो नया विवाद शुरू हुआ, तो इसमें एक श्रृंगार गौरी का मंदिर है जहाँ पर महिलाएं पूजा करने जाती थी पहले रोज, लेकिन बीच में रोक दिया गया और साल में एक बार पूजा करने की अनुमति दी गई। अब यही महिलाएं
कोर्ट में गई और उन्होंने कहा मैं रोज पूजा करना चाहती हूँ, हमको अनुमति दी जाए। बस यहीं से नया मसला शुरू हुआ और कोर्ट ने सर्वे का आदेश कर दिया। अब यहाँ पर एक ही बात हो रही है जो लगातार कि सर्वे का आदेश हो गया, सर्वे की कल रिपोर्ट जाएगी, लेकिन जो 1991 का एक्ट है वो बार बार गूंज रहा है कि उसका पालन क्यों नहीं किया जा रहा। उनका कहना है कि यदि 1991 एक्ट को ले लिया जाएगा तो ना तो सर्वे हो सकता है, ना मंदिर में कोई बदलाव हो सकता है, ना मंदिर के नेचर में कोई बदलाव हो सकता है, इसलिए ये विवाद खड़ा हो गया है। अब हो क्या रहा है कि अब इस बात को लेकर के सियासत बहुत गर्मा रही है। देखिए, सबसे पहले डिप्टी सीएम का बयान आ जाता है कि जो है एक दिन सत्य की को सामने आना ही था, सत्य ही शिव शक्ति है। बीप का बयान आ जाता है, बड़ा आनंद है, हमारा जो है शिवलिंग की प्राप्ति हो गई है। वहीं दूसरी ओर ब्रजेश पाठक कहते हैं कानून मंत्री, हम प्रदेश में कानून का ही राज रहेगा, किसी की कोई सुनवाई नहीं होगी। उसी बाद अगर आप और थोड़ा आगे बढ़े तो ओवैसी का जो लगातार बयान आ रहा है वो अपने आप में सियासत को भी गरमा रहा है और एक लगता है कि कहीं ना कहीं भावनाएं बिखर रही हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि आपने बावरी तो मेरी छीन ली है, लेकिन ध्यान रखो हम ज्ञानवापी नहीं छीनने देंगे और कयामत तक लड़ेंगे। तो इस तरीके की जो बयानबाजी हो रही है, महबूबा मुफ्ती का बयान आ गया, वो कह रहे हैं ध्यान भटकाने के लिए सब कुछ हो रहा है मुद्दों से, और उन्होंने कहा अब तो मस्जिद में सिर्फ भगवान ही दिखाई देते हैं। तो इस तरीके की जो लगातार बयानबाजी शुरू हो गई है, एक भड़काऊ जो है बयान शुरू हो गए हैं, उससे माहौल पर भी इफेक्ट पड़ा है। अब बहुत कुछ निर्भर करेगा कल सुप्रीम कोर्ट के रुख पर। क्या वास्तव में सुप्रीम कोर्ट 1991 के पूजा स्थल एक्ट को देखती है, क्या उस अनुसार फैसला देती है, या कोई फैक्ट्स एंड फाइंडिंग के आधार पर कोई निर्णय लिया जाता है, ये देखने की बात होगी। बहरहाल इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश में नए सिरे से जो है सियासत गरमा गई है। जी बिल्कुल, अभी तो सियासत तो गर्मा गई है, मगर सवाल एक ही है कि जिस तरीके से ज्ञानव्यापी मस्जिद में जो शिवलिंग अभी तो सामने आया, तो उसके बारे में अब क्या होगा, कैसे आगे की कार्रवाई होगी। जी सर जी, आप जो है वो शिवलिंग के नाम पर वोट लेंगे, अब वही होगा। कोई मुद्दा तो बचा नहीं था भाजपा के पास में, इसीलिए 1991 का पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून उन्होंने जो है वो कूड़ेदान में उठाकर फेंक दिया प्रधानमंत्री जी ने। उस तक नहीं बोलेंगे वो उस कानून पर, क्योंकि आज तक राम के नाम पर वोट पकाकर खाया, अब जो है वो शिव के नाम पर वोट पकाकर खाएंगे। जिन्हें आज तक राम अच्छे लग रहे थे उन्हें अब शिव अच्छे लगने लगे। मंत्री में हिम्मत है हिंदुत्व के बात से बोलो, बात करिए उस पर, कोई बात नहीं करेगा उस पर, क्योंकि देश के युवाओं को राम मंदिर के बाद में कोई मुद्दा नहीं है बीजेपी के पास में, तो अब नए मुद्दे में उलझाकर रखना है। गुजरात चुनाव गृह राज्य है, वो गुजरात चुनाव उनको जीतना है, 2024 का चुनाव उनको जीतना है। મતલબ સલભાઈ તમને એક જ અત્યારે લાગી રહ્યું છે કે ના ચૂંટણી આવી રહી છે ને એટલા માટે જ આ બધી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે તેમ? बीजेपी के पास में नरेंद्र मोदी में इतनी हिम्मत है कि वो अपने काम पर वोट मांगे, वो गुजरात मॉडल की कहीं पर बात ही नहीं करते। नाम भाई लोकतंत्र है ना, आप भी पीएम बन सकते हैं, लोकतंत्र है। बेरोजगारी की हालत देखिए, एक सवाल सवाल भाई कहाँ जा रहा है? सवाल भाई तो एक सवाल है, एक सवाल है, मीडिया की आजादी कहाँ जा रही है? आपके पास बढ़ गया है, सवाल તમે ગુજરાત મોડલની વાત કરો છો અને ચૂંટણીની વાત કરો છો। મારો સીધો સવાલ એ છે, એક મિનિટ સવાલ ભાઈ, મારો સીધો સવાલ આપને એ છે કે અત્યારની જે આ પરિસ્થિતિ છે અને તેમાં તમે ચૂંટણીની વાત અત્યારે તો કરો છો। એક મિનિટ સવાલ તમે જ્યારે ચૂંટણીની વાત કરો છો, અત્યારે હાલમાં કોઈ ચૂંટણીની વાત સામે આવી જ નથી, સર્વે થયો છે ને સર્વેમાં અત્યારે તો બહાર આવ્યું છે ને। मुद्दा से बात नहीं करे, जब मुद्दा से बात नहीं करते, मुद्दा से बात नहीं करेंगे। टेम्पल एंड इसीलिए खेलने लग गए गुजरात से दिल्ली, गुजरात से दिल्ली।
તમને એવું લાગી રહ્યું છે કે આ સર્વે ખોટો થઈ રહ્યો છે એમ તમને એવું લાગે છે? તો भाई आपको पता है कि इलेक्शन में कोई मुद्दा बीजेपी के पास में नहीं है। उन्हें पता है कि उनकी वोटों की उगाई सिर्फ मेरे देश વર્ષથી સત્તામાં છે ભાઈ। ભાજપ કોંગ્રેસ કોઈની ચિંતા નથી કરવી। સલભાઈ મારો સીધો સવાલ આપણે એ જ છે કે અત્યારની આ પરિસ્થિતિમાં તમે એમ કહી રહ્યા છો ને સર્વે અત્યારે થયો એ જ ખોટો થયો એમ? नहीं है। भाजपा के मुद्दे नहीं है, कभी गुजरात में 22 साल से सत्ता में है और केंद्र में 8 साल से सत्ता में। अगर मुद्दे नहीं होते तो 22 साल सत्ता में नहीं होते और 8 साल से सेंट्रल में सत्ता में बैठे, तो ये उनके पास मुद्दे होंगे तभी बैठे होंगे भाई। जी हाँ, विशाल तो भाई, 8 साल में क्या आप बन जाएंगे? पंडित आज भी रो रहे हैं। क्या लोग उखाड़ है भाई, आप भी पीएम बन जाइए ना। क्या किया 8 साल में आपने? आपके पास मुद्दे हैं, आप पीएम बन जाइए, लोग बन रहे हैं जो। विशाल भाई एक मिनट एक मिनट साल भाई एक मिनट साल भाई मारे હું ચૂંટણી લઈને પછી શાંતિથી વાત કરીશ। आपसे बताइए सल भाई હું ચૂંટણી લઈને સર શાંતિથી વાત કરીશ। અત્યારે હાલ તો મારે એ મુદ્દાને લઈને અત્યારે હાલ કોઈ ચર્ચા નથી કરવી। એક મિનિટ વિશાલ ભાઈ મારો સીધો સવાલ આપને એ છે કે એક બાજુ અસદુદ્દીન ઓવૈસી દ્વારા એમ જ કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે બાબરીને અમે જવા દીધી, હવે જ્ઞાનવ્યાપી નહીં જવા દઈએ। કઈ રીતે આપ જોઈ રહ્યા છો તેના પર? ભાઈ ઓવૈસી સાહેબે એવું કહ્યું હતું કે કયામત તક મસ્જિદ થી મસ્જિદ है और કયામત તક रहेगी। એટલે અમારું પણ જ્યાં દેવસ્થાન હતા ને જેટલા તોડવામાં આવેલા છે એ અનાદિકાળથી દેવસ્થાન હતા, મંદિરો હતા, અત્યારે પણ મંદિરો જ છે અને ભવિષ્યમાં પણ કયામત પછી પણ કયામત આવશે ને અને જ્યારે સૌનો હિસાબ થશે ને એ પછી પણ મંદિરો જ રહેશે। चलिए इसका मतलब आप कम से कम ये तो मानते हैं कि कयामत आएगी और हिसाब तो होगा, तो कम से कम इसी ना बात का हिसाब डर होगा, आपका हिसाब होगा। साल भाई ओवैसी डायरेक्टली एम જ કહે છે साल भाई डायरेक्ट एम જ કહે છે કયામત સુધી અમારી આ મસ્જિદ मेरा बिलीफ है રહેશે। શું સંવિધાન ઉપર વિશ્વાસ નથી અત્યારે? इन मंदिरों को आप खुद अपने आप से अपने हाथों से मस्जिद बनाएंगे, ये मेरा गलत नहीं कहा, सही कहा है। साल भाई एक જ મિનિટ ઓવૈસીજી એમ કહે છે કે કયામત સુધી મસ્જિદ જ અમારી રહેશે, તો શું સંવિધાન ઉપર કોઈ વિશ્વાસ જ નથી? तो क्या आपको भी विश्वास नहीं है संविधान पर? आपको भी विश्वास नहीं है कानून पर? जब कहा गया 1991 के कानून में कि नहीं होगा कुछ चीजें ऐसी, जो मंदिर है वो मंदिर रहेगा, जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी, तो क्या कानून पर विश्वास नहीं है? અત્યારે સર્વેની વાત ચાલે છે ને, તો સર્વેમાં અત્યારે તો સામે આવ્યું છે कि देश का हिंदू खुले सांड की तरह धर्म संसद में खड़ा होकर कह दे कि मुसलमानों का कत्लेआम करो, वो सही कह रहा है। वो 15 मिनट हमने आदमी को એટલે બતાવ્યું કે અમે એટલે તમે એમ કહી રહ્યા છો ને સર્વે કે અત્યારે આ સંવિધાનિક જે પણ પ્રક્રિયા થઈ રહી છે ના થવી જોઈએ? अरे जब कोर्ट का ऑर्डर है, जब पार्लियामेंट का कानून है कि नहीं होना चाहिए, तो कैसे हो रहा है ये सब? क्या उस जज को भी डर लग रहा है कि उसका भी जस्टिस लोया जैसा कांड ना हो जाए कुछ? તો बिल्कुल सवाल उठते हैं। તો અહીંયા પણ ક્યાંક ડર લાગી રહ્યો છે એવું જ કેમ અત્યારે પ્રતીત થઈ રહ્યું છે? उसके विरुद्ध भी कोई पागल मौलवी फतवा जारी न कर दे, उसको इस बात का डर लग रहा है। आपको पता होना चाहिए फतवा मौलवी जारी करता है, मुफ्ती जारी करता है। आप लोगों की प्रॉब्लम यही है कि आपको इस्लाम का क ख ग एबीसीडी हमारी પાસે તમારો બલ છે, અમારી પાસે भाई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मैसेज पढ़ के आप हिंदू भाइयों को नुकसान देना चाहते हैं। आपने अपनी પાસે તમારો બલ છે, તમારા क्या होता है સંવિધાનિક પ્રક્રિયાની વાત થતી હોય તો ત્યારે અત્યારે જે કોર્ટનો ઓર્ડર આવે અને અત્યારે પછી જ અત્યારે કોઈ કામ થતો હોય છે। उसके बारे में बोला करिए आप, સલ ભાઈ बिना जानकारी के न बोला करिए आप। भाई ऐसे 500 फतवे भारत में जारी हुए हैं अब तक, इसका सर ले आओ, उसका सर ले आओ, बताइए ना। और कोई बात नहीं देता है। એક મિનિટ સલ ભાઈ મારો સીધો સવાલ આપને એક મિનિટ સલ ભાઈ सरकार हमारी है, घूमते रहो। और कभी किसी हिंदू संत ने न कोई मस्जिद की जगह दबाई है, न किसी का ये फतवे सारे मौलवी मस्जिदों से ही जाहिर होते हैं। क्या मुसलमान मुल्ला थे बोलो? સલ ભાઈ મારો સીધો સવાલ આપને એક જ છે કે અત્યારની જે આ પરિસ્થિતિ છે, ચલો તમે એમ કહી રહ્યા છો કે ના અત્યારે મંદિરને અમારી મસ્જિદે છે, આ સર્વે થઈ રહ્યો છે ને સંવિધાનિક પ્રક્રિયા અત્યારે તો થઈ રહ્યું, શું તમને સંવિધાનિક પ્રક્રિયામાં પણ અત્યારે કોઈ વિશ્વાસ નથી? नहीं मानते। जब आपने पहले कानून को एक कूड़े के दान में डाल दिया, कूड़ेदान में डाल दिया 1991 के कानून को, तो फिर अब आप पहले वहां से सवाल खड़े करिए ना कि जब 1991 में पार्लियामेंट ने कानून बना कर बोल दिया कि चीजें नहीं होगी,
जब संवैधानिक प्रक्रिया के तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुत ओके। पहले, बरसों पहले ये कह दिया कि सर्वे की जरूरत नहीं है, स्टे लगा दिया था, उसके ओके बावजूद ओके मुद्दा कहां से आया? ओके 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 सहल भाई, विशाल भाई छेल्ली 30 सेकंड विशाल भाई। कांग्रेस वालों को, उस सरकार को वो लगा होगा कि जरूरत नहीं है, वो उनकी आस्था का विषय था। हमें कांग्रेस का मतलब नहीं है, हमें किसी का मतलब बच्चे नहीं है। नहीं, प्लीज बच्चे नहीं जी। विशाल भाई इस सरकार को लगा कि 100 करोड़ लोगों की आस्था का विषय है और सर्वे करवाने की आवश्यकता है, तो सरकार ने कराया है। वही तो मैं कह रहा हूं ना ओके भाई। ओके ओके तो સર્વેના દસ્તાવેજોમાં અત્યારે તો જે આ જ્ઞાન વ્યાપીનું રહસ્ય અત્યારે તો જોવા મળી રહ્યું છે, તે હવે ક્યાં જઈને અટકશે તેના લઈને તો એક સવાલ યથાવત જોવા મળી રહ્યો છે। અને જે રીતે મંગળવારે પણ હવે કોર્ટમાં રિપોર્ટ સોંપવામાં આવશે અને નામદાર કોર્ટ દ્વારા હવે કયા પ્રકારનો જે નિર્ણય જાહેર કરવામાં આવશે તે તો જોવા જ રહ્યું। તેની સાથે જે રીતે કહી શકાય કે અત્યારે તો 3 દિવસ સુધી જે સર્વે કરવામાં આવે ને તેમાં પણ અત્યારે તો આ શિવલિંગ જે સામે આવ્યું છે, આખું જે પરિસર છે તેને પણ અત્યારે તો જે સીલ કરી દેવામાં આવ્યું છે। હવે કેવા પ્રકારની પરિસ્થિતિ સર્જાશે તે તો હવે જોવા જ રહ્યું। તેની સાથે સહલભાઈ, વિશાલભાઈ અને રમેશભાઈ, આપ ત્રણનો આભાર અમારી સાથે ચર્ચા વિચારણામાં જોડાવા માટે। તો આજની આ વિષય રજૂઆત આપશો। નમસ્કાર।